Good morning students, welcome to Bhartiya online classes. Today we will study a new topic, compound microscope. So our today's topic is compound microscope. As we have discussed in previous class about simple microscope, the magnifying power of simple microscope is very less. So, to increase the magnifying power, we use two convex lens in place of one convex lens. This arrangement of two convex lens is known as compound microscope, in which the magnifying power of microscope is increased, and we can see more tiny objects more magnified by use of this optical instrument. So, first of all, we will discuss about the construction of this compound microscope. In this compound microscope, two convex lenses which are coaxial with each other. Coaxial means the principal axis of both lenses are common. So, in compound microscope, two coaxial lenses are fixed over a tube, and the distance between both lenses can be changed by rack and pinion method. Rack and pinion method मतलब आपने देखा होगा जैसे नमकीन का पाउच आता है उसके ऊपर हम चेन जो मूव करते हैं वो मेथड है, या आपने ऑप्टिकल बेंच अगर प्रैक्टिकल लैब में देखा होगा फिजिक्स की, तो उसमें ऑप्टिकल बेंच में जो हम लेंस को मूव करते हैं दैट इज नोन एज रैक एंड पिनियन मेथड. ओके, तो दो कोएक्सियल कॉन्वेक्स लेंस होते हैं जिनको हम एक ट्यूब पे फिक्स कर देते हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस रैक एंड पिनियन मेथड से चेंज किया जा सकता है. देन आफ्टर हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ही स्मॉल है, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड लेंस है उसकी आर्परेचर, उसकी फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब शॉर्ट होनी चाहिए. So the lens near object is known as objective lens, and the lens near eye is known as eyepiece lens, and its focal length and radius of curvature and aperture are large. Okay, so this was the construction of compound microscope. Okay, I am drawing a diagram here. Just like if this side we have tiny object which we have to see from compound microscope, then this is the lens known as objective lens, the lens inside of object, and then the lens near eye which has large aperture is known as eyepiece lens, LE. Okay, both are fixed in a common tube and both are coaxial to each other. Name this optical center O1 and this optical center for eyepiece lens as O2. Okay, both are fixed in a tube having same principal axis. Now this was the construction. Now we will do the image formation, and then after we will find the magnifying power. So let us assume that the object is placed at least distance of clear vision, that means at 25 cm from our eye. Let us assume that we are having an object PQ which is at least distance of clear vision. This point is O and here is our eye. The angle made by object on our eye we assume alpha. This is figure first and this is figure second. So what is our motive? Our motive is that if we are seeing from this side, from compound microscope, then we want to see object on front of our side. That means we want that image will be formed in front of the eyepiece lens, not behind the eyepiece lens. We want that the image of object, that tiny object which we want to see magnified, that image of that object should be made in front of our eye. That means in the side of object. So आपको पता है कि अगर यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उससे जो इंसिडेंट रे होगी वो ऑब्जेक्टिव लेंस ओ के लिए आएगी, यानी कि एलई आईपीस लेंस तक कोई भी रे नहीं पहुंचेगी. हमें एलई यानी कि आईपीस लेंस को भी रे देनी है. इसके लिए यहां पर जो ऑब्जेक्ट रखा है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, उसकी इमेज बिहाइंड द लेंस बननी चाहिए, यानी कि दोनों लेंसेज के बीच में जो इमेज बनेगी वो इमेज इस आईपीस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी. और ऐसा केवल तभी होता है कि किसी कॉन्वेक्स लेंस के पीछे इमेज बने जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से पीछे रखा जाए. अगर हम फोकल लेंथ पे रख देंगे तो इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी. फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देंगे तो इमेज इन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाएगी, सारी रेज इस साइड ही रह जाएगी, यहां तक कोई रे पहुंचेगी. तो
बिहाइंड रखना है, ये चीज नोटिसेबल है। सो लेट अस अज्यूम दैट दिस PQ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड F, P and Q. Okay. Now we put two rays. The ray parallel to principal axis will pass through focal length, and the ray passing through optical center will emerge here. Okay. So here both rays are intersecting each other after reflection. So the image due to objective lens is made. We assume P dash and Q dash. Okay. This image of objective lens will behave as virtual object. इस लेंस को मेन ऑब्जेक्ट से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि मेन ऑब्जेक्ट और इस लेंस के बीच में एक और लेंस है, तो ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को सी नहीं कर पाएगा। इसको ऐसा लगेगा कि ये जो P dash Q dash जो कि इमेज है ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस LO, वो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इस P dash Q dash जो इमेज है, हम चाहते हैं कि हमारी जो फाइनल इमेज है वो इस साइड बने, यानी कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बने। ऐसा कब होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए। तो मैं रैक एंड पिनियन मेथड से इस लेंस को ऐसा एडजस्ट करूंगा कि ये लेंस इस ऑब्जेक्ट को अपने फोकस पॉइंट के अंदर ले आए। तो ये मान लेते हैं FE। क्लियर? तो यहां से अगर मैं एक रे कुछ इस तरीके से डालता हूं तो ये रे जो है फोकस पॉइंट से जाती है, और दूसरी रे मैं ऑप्टिकल सेंटर से डाल रहा हूं तो वो सीधी निकलेगी। क्लियर? ये लीजिए, ये दोनों डाइवर्ज होती हुई नजर आ रही हैं। तो ये इन फ्यूचर कभी भी मीट नहीं करेंगी, तो इनको मीट कराने के लिए हमें बैक साइड में इंक्रीज करना पड़ेगा। तो बैक साइड में इंक्रीज करने के लिए मैं यहां इसको ले आता हूं और दोनों रेज को मैं बैक साइड पे ले आया, और यहां पर हमारी फाइनल इमेज बनी जिसका नाम मैं रख रहा हूं P डबल डैश Q डबल डैश। क्लियर? इमेजेस फॉर्म इन फ्रंट ऑफ अवर आई। यहां से हम इमेज को सीन करते हैं। ठीक, चलिए अब जरा ध्यान दीजिए कि हमारा मेन मोटिव है, और मेन मोटिव इज टू फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर। सो मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए हमें पता है फॉर्मूला होता है बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा देखिए यहाँ पर फिगर फर्स्ट से हम निकाल सकते हैं, PQ अपॉन QO परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर देखिए इमेज ने आई पर कितना एंगल बनाया है, ये एंगल, तो इसको मैं मान लेता हूँ बीटा। अब इस बीटा के लिए आप दो ट्रायंगल चूज कर सकते हैं, O2 P डबल डैश Q डबल डैश, एक तो ये है, दूसरा है O2 P डैश Q डैश। मैं O2 P डैश Q डैश को यूज करूंगा क्योंकि इससे हमारा जो फाइनल आंसर है वो UVDF इनके टर्म्स में आ जाएगा, क्योंकि मैं H और H डैश यानी कि हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के टर्म्स में फॉर्मूला नहीं चाहता, मैं UDVF के टर्म्स में फॉर्मूला चाहता हूं, यानी कि डिस्टेंस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। दैट्स व्हाई आई विल यूज स्मॉलर ट्रायंगल। ओके, सो लेट अस सी फ्रॉम फिगर फर्स्ट, tan alpha is equals to PQ upon QO. If tan alpha is very small, okay, then tan alpha can be written as alpha, and we will get alpha equal to PQ upon QO. Okay, equation number first. Now second, from figure second, tan beta is equals to, ध्यान दीजिए tan beta इस ट्रायंगल में देखिए P dash Q dash अपॉन P dash O2, क्या लिखेंगे P dash Q dash अपॉन P dash O2। इसी तरीके से tan beta is very small, तो मैं इसको बीटा लिख दूं डायरेक्ट, यहां से फॉर्मूला आ जाएगा P dash Q dash अपॉन P dash O2, इक्वेशन नंबर 2। चलिए इन दोनों की वैल्यूज मैं मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले में रखता हूं, बट वी विल गेट m इक्वल टू P डैश Q डैश अपॉन P डैश O2 डिवाइडेड बाय PQ अपॉन QO, PQ अपॉन QO। इसको रीअरेंज करके अगर हम लिखें, लेट अस सी, रीअरेंज करके लिखें तो देखिए P डैश Q डैश एंड PQ, ये साथ में मैं लिख रहा हूं
P डैश Q डैश अपॉन PQ मल्टीप्लाइड बाय, देखिए इनको और इनको साथ में लिख दिया, अब ये ऊपर जाएगा QO अपॉन P डैश O, QO अपॉन P डैश O, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि P डैश Q डैश एंड PQ आर द हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि हमें नहीं चाहिए, इनको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो अगेन फ्रॉम फिगर 2 देखिए वी हैव टू सिमिलर ट्रायंगल्स, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, जैसा कि हमने मिरर इक्वेशन में यूज किया था। सिमिलर ट्रायंगल जो एक जैसे ट्रायंगल दिखते हैं उनकी फ्रंट साइड का रेशियो नेबरिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है, आमने सामने की साइड का रेशियो अगल बगल की साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। देखिए ट्रायंगल में कौन कौन से सिमिलर हैं, PQO1 और साथ में P डैश Q डैश O1, ये दोनों सिमिलर हैं। तो हम कहेंगे फ्रॉम फिगर 2 PQO1 एंड P डैश Q डैश O1 आर सिमिलर। तो हम कह सकते हैं PQ अपॉन P डैश Q डैश, PQ अपॉन P डैश Q डैश इज इक्वल्स टू नेबरिंग साइड कौन सी होगी, QO1 अपॉन P डैश O1, QO1 अपॉन P डैश O1। क्लियर? मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, ताकि इस फॉर्मूला में वैल्यू रख सके। तो हम कह सकते हैं P डैश Q डैश अपॉन PQ, लेफ्ट साइड को रिवर्स कर दिया तो राइट साइड की रिवर्स हो जाएगी, P डैश O1 अपॉन QO1। ओके, नाउ putting value in equation 3 में वैल्यू पुट कर रहे हैं, what we will get, m is equals to P dash Q dash अपॉन PQ की वैल्यू ये पुट करेंगे तो यहां से आ जाएगा P dash O1 अपॉन QO1 मल्टीप्लाइड बाय QO डिवाइडेड बाय P dash O2। क्लियर? तो यहां तक हमने मेन काम कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे और इस इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं, इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, देन वी विल गेट द फाइनल आंसर ऑफ आइडेंटिफाइंग फॉर्म। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। सो बाय साइन कन्वेंशन, देखिए कौन कौन से टर्म है, P डैश O1, दूसरा है QO1, तीसरा है QO एंड नेक्स्ट इज P डैश O2। वन बाय वन साइन कन्वेंशन रखेंगे, देखते हैं P डैश O1 क्या है, जरा देखिए फिगर नंबर 2 में। P डैश O1 ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज की डिस्टेंस को B से डिनोट करते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस का है तो मैंने इसको BO से डिनोट कर दिया। प्लस का या माइनस का, इंसिडेंट रे इस साइड जा रही है, आप भी ऑप्टिकल सेंटर से सेम साइड चलेंगे तो ये पॉजिटिव का। इसके बाद QO1, देखिए QO1 ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यानी कि इसको U से डिनोट करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस है तो UO प्लस का माइनस का हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव होती है। नेक्स्ट इज QO, फिगर नंबर 1 में देखिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ नियर विजन, तो इसको मैं D से डिनोट करूंगा और वो भी नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट देखिए P डैश O2, ये क्या है, आईपीस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि आईपीस लेंस है तो UE प्लस का या माइनस का हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस की होती है। क्लियर? तो चलिए अब ये वैल्यूज हम पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 3 व्हाट वी विल गेट, लेट अस सी। एक के बाद एक वैल्यू पुट कर देते हैं, तो m इक्वल टू हो जाएगा VO अपॉन UO माइनस साइन, ओके, मल्टीप्लाइड बाय QO की वैल्यू है माइनस D अपॉन QO1 की वैल्यू है P डैश O2 की वैल्यू है माइनस U, माइनस से माइनस कैंसिल, अब ये हमारे पास फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स यहां से हमने इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकाली,
ध्यान रखने की बात यह है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर मैं इस साइड से किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहा हूं तो सबसे पहले आईपीस लेंस आईज के पास आएगा, देन आफ्टर ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि छोटा होगा ऑब्जेक्ट की साइड आएगा। हम चाहते हैं कि जो फाइनल इमेज है वो मेरी आईज के फ्रंट में बने, दैट मींस आईपीस लेंस के बाद कहीं भी, इन दोनों लेंस के बीच में या ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद भी बन सकती है। उसके लिए जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां रखना है इन द लास्ट, और अगर हमें आईपीस लेंस तक रेज पहुंचानी है तो मुझे जो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रखा हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने उसको फोकल लेंस से पीछे करना पड़ेगा, ताकि उसकी जो इमेज है वो बिहाइंड द लेंस बने। बिहाइंड द लेंस जो इमेज P', 2' बनेगी विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस लेंस। एंड देन आफ्टर मैं चाहता हूं कि ये जो इसके वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज उसी साइड में बने जिस साइड में ये है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इस आईपीस लेंस को ऐसे मूव करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा कि जो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है P', 2' वो आईपीस लेंस के फोकल पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए, जिसकी वजह से जो फाइनल इमेज बनेगी वो P', 2' की साइड में ही बनेगी। अब यहां से एक और चीज आ सकती है कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेंसेज। डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेंसेज मतलब दोनों लेंसेज के बीच में ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है, जिसको हम L से डिनोट करते हैं, L इक्वल्स टू, जरा ध्यान दीजिए, यहां ऑप्टिकल सेंटर से ये P' क्या है, इमेज की डिस्टेंस, और ऑब्जेक्टिव लेंस ये आपका हो गया VO, मॉडुलस। मॉडुलस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहां पर हमें डिस्टेंस बतानी है, साइन कन्वेंशन नहीं। अभी हम चेक भी करेंगे कि मॉडुलस क्यों ले रहे हैं। देन आफ्टर P' से O2 तक की दूरी, ये क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस लेंस, तो ये हो जाएगा प्लस UE। ये मॉडुलस इसलिए लिया है, मान लीजिए कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। अगर हमने साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल किया तो ये 15 - 5 यानी कि 10 हो जाएगा, जबकि एक्चुअल में हम जानते हैं द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ बोथ लेंसेज इज 20 मीटर। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि यहां इस फॉर्मूले में हमें साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सभी में हमें साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करना है। So students, today we studied compound microscope. In next lecture we will study about telescope. If you have any doubt, go to your mobile app and chat and doubt option. You can ask any query. Till then, thank you very much. Have a nice day.